عمران خان اور آرمی چیف جنرل آصف منیر صاحب کی ملاقات کی خبروں میں اس وقت کیا صداقت ہے اور اب اہم ترین جو خفیہ ملاقاتوں کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے مکمل ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ یہ ملاقات کیوں ہونے جا رہی ہے اور اس ملاقات کا اصل مقصد کیا ہے، کیا وجہ ہے، اور اب یہ معاملہ جو ہے وہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ جو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل مزاحمت کی جانب بڑھ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان برف نہیں پگھلے گی، تو ایک شاٹ نے جو خان صاحب نے کھیلی ہے، جو گوگلی انہوں نے کروا دی ہے، اس گوگلی نے ایک بال سے 3 وکٹیں لے لی ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور پھر جناب دوسری جانب وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے، تختہ الٹنے کی خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف کی شاندار واپسی ہوئی ہے، اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور شیر افضل مروت پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور ایم این اے ہیں، ان کا آج مکرو چہرہ بے نقاب میں نے کرنا ہے آپ کے سامنے کہ اصل وجہ کیا ہے اور شیر افضل مروت کون سے اور کس طرح سے کس کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں اور کیسے یہ شخص جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں ایک رانگ نمبر ہے۔ آج ان کا مکرو چہرہ جو ہے وہ قوم کے سامنے آشاں ہو چکا ہے، اس حوالے سے آپ کو مکمل ڈیٹیلز بتانی ہے۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، ہم سب سے پہلے کچھ اہم ترین اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ اس وقت سہولت کاری کا سب سے بڑا فریضہ سر انجام دے رہا ہے، اور اگر یوں کہوں کہ یہ ننگا ناچ رہے ہیں اور ان کو ننگا نچوانے والے طاقتور ہیں تو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ پاکستان کی تاریخ میں اگر پہلی بار سب سے زیادہ پاکستان کی عدلیہ ناچی ہے تو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے عدلیہ ناچی، ججز ننگا ناچے، پھر بیوروکریسی ننگا ناچی، پھر سیاستدان بھی اسی حمام کے اندر آ گئے، اور یہ سارے لوگ ایک حمام کے اندر ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہیں کہ جس طرح سے ایک شخص کو گرانے کے لیے یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ وہ عمران احمد خان نیازی ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا، وہ گر نہیں رہا، وہ ڈیل نہیں کر رہا، وہ ان سے معافی نہیں مانگ رہا۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو چیف ہیں اسکندر سلطان راجہ صاحب، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ 20 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی مزید کم کر دیں اور آپ کو ہم کینیڈا کے اندر جو ہے پاکستان کا سفیر تعینات کر دیں گے۔ اب ان کو ریوارڈ دیا جا رہا ہے۔ تو اس سب کے اندر آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب صاحب نے کہا کہ مقاصد پورے کروانے کے لیے چیف الیکشن کمیشن کو لالی پاپ دیا گیا۔ اب انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ ان کو لالی پاپ یہ دیا گیا کہ آپ کو ہم کینیڈا بھیج دیں گے۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کی پیٹ میں چھرا گھونپ رہی ہے، اسمبلی میں کیا ترامیم کرنے جا رہے ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا۔ قومی اسمبلی میں قانون کا مطالعہ کرنے کا موقع نہیں دیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ پیپلز پارٹی کا اراکین کو بھی آرڈیننس پڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا، ہمارا آئے میں فساد کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ پاکستان شپنگ کارپوریشن میں ترمیم کے باعث ہی اپنی مرضی سے ٹھیکیداروں کو ٹھیکہ دے سکتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کا اعلان کرنے کے لیے قومی اسمبلی کے اسپیکر ریاض صادق جان بوجھ کر تاخیر کر رہے ہیں۔ جو وزیر اعظم کا الیکشن ہار گیا وہ اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے، جس کو ایم این اے بننا ہے وہ الیکشن کمیشن کو پیسے دے یا منتخب ہاؤس نہیں ہے۔ یہ بدترین قانون کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ان کا اگلا ٹاسک نون لیگ کو 20 سیٹیں اور دینا ہے۔ اب پھر ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم اسی کا اجلاس میں بھرپور احتجاج بھی کریں گے، روڈ اور اسمبلی میں مقابلہ بھی کریں گے۔ یہ غلط فہمی آپ دور کر لیں کہ ہم نہ ڈریں گے نہ پیچھے ہٹیں گے۔ اگر یہ کسی کی ناکامی ہے تو الیکشن کمیشن کی ہے۔ حکومت نے قانون سازی کی ابتدا آئین کے خلاف ورزی سے کی ہے اور غیر قانونی عمل سے آرڈیننس میں ترمیم کروائی گئی ہیں۔ جس میں قانون میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں اسے ممبران کے سامنے لائی جائیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ڈٹ کر وہاں پر مقابلہ کر رہی ہے۔ ایوان کے اندر پی ٹی آئی جو ہے نون لیگ کو بہت ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ اور پھر دوسری جانب اب 2 اپریل کو سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو نون لیگ نے پرویز رشید، اسحاق ڈار، طلال چودھری، نواز شریف کے درمیان ساتھی ناصر بٹ اور سعود مجید اور ڈاکٹر سعید الہی سمیت دیگر کو کاغذات نامزدگیاں جمع کروانے کے لیے ہدایات جاری کرتی ہیں۔ سینٹ انتخابات میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا کل آخری روز ہے اور اسلام آباد سے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں۔ اب یہ جناب جو دوسری جانب طارق فضل چودھری، حنیف عباسی، انجم عقیل، انوشا رحمان اور نصرت صادق نے جمع کروائی ہیں کاغذات نامزدگیاں۔ اور کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد ایک صحافی کے سوال پر طارق فضل چودھری نے کہا کہ اسلام آباد جنرل نشست پر امیدوار کا فیصلہ پارٹی قیادت ہی کرے گی۔ اور پھر دوسری جانب فیصل واڑا صاحب
ताकतवरों के इंतहाई करीब। और आप सबको पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले के पहले साथी थे इमरान खान के, और इन्होंने इमरान खान साहब की पीठ पर छुरा घोंपा था। अब ये भी जनाब जो है वो सेनेट का इंतखाब लड़ने जा रहे हैं, और इन्होंने भी कागज़ात नामजदगी जो है वो हासिल कर ली है। अब किस पार्टी से लड़ेंगे ये किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन पीपल्स पार्टी से हो सकता है कि पीपल्स पार्टी की नशिस्त से जो है वो फैसल वाडा साहब वहाँ पर इलेक्शन लड़ लें, और ये उनकी नशिस्त से जो है वो सेनेटर मुंतखब हो जाएं। तो ये एक ऐन मुमकिन है कि फैसल वाडा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। अब जनाब आ जाएँ सबसे पहली खबर के वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस वक्त हलचल मची हुई है। ये मामला क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी होने जा रही है, और PTI जो है वो बहुत बड़ा बम शेल गिराने जा रही है हुकूमत के ऊपर कि इस्लामाबाद में तख्ता उलटने की खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चूंकि बल्ले का निशान वापस नहीं मिला अभी तक, और इंतरा पार्टी इंतखाबात हो चुके हैं, और जब बल्ले का निशान वापस नहीं मिला था तो मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए इनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो है वो जाना पड़ा, और फिर पूरी एक साजिश के तहत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी अदालतों ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, सुप्रीम कोर्ट सबने मिलकर जो है वो एक प्लान के तहत इनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी। तो लिहाजा अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इंतरा पार्टी इंतखाबात दोबारा करवा लिए हैं। तो इस सिलसिले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़म करने का फैसला कर लिया गया है। अगर इलेक्शन कमीशन से हमें बल्ले का निशान वापस मिल जाता है तो दोनों जमातों को आपस में ज़म कर दिया जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा कि इस हवाले से लीगल टीम हमें बताएगी ईवान में सिर्फ तहरीक इंसाफ ही रहेगी, हम इस जमात में शामिल रहेंगे मगर दोनों पार्टियों को ज़म भी करेंगे। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज़म कर दिया जाएगा, और जो उनके अरकान भी होंगे, जो उनके चेयरमैन है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाएंगे। इससे पहले हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, जो अदालतें और ट्रिब्यूनल में मामला चल रहे हैं इंशाल्लाह हमें इंसाफ की तवक्को है, हमारी सीटें वापस आ जाएंगी, और हमारे नंबर्स मुकम्मल हुए तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आएगी और इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने के मामले पर हमने बहुत मुशावरत की थी, उसके बाद ये फैसला किया था कि इस वक्त हमारे ऑप्शन कम थे, और तो लिहाजा अब जो मामला है कि हमें ये सब कुछ करना पड़ा था। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इशारा कर दिया है, और नून लीग अगर किसी सबसे ज़्यादा इंसिक्योर है तो वो पीपल्स पार्टी है, वो उनकी अपनी इत्तेहादी जमात है, और उसके लिए नून लीग की कोशिश कर रही है, वो जनाब हाथ पाँव मार रही है कि हमें 20 सीटें और मिल जाएं, कि हमें पीपल्स पार्टी का मोहताज ना होना पड़े। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब बैठकर ये बात सोच रहे हैं कि हमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान है या हमें जो धोखा दे सकती है पीपल्स पार्टी है, और क्योंकि जरदारी साहब कह रहे हैं कि जनाब आप ही हमारी जो सीढ़ी के ऊपर खड़े हुए हैं, अगर हमने ये सीढ़ी खींच ली तो आप धड़ाम से नीचे आ जाएंगे, और आपके खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी, आप वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे, लेकिन मैं 5 साल के लिए सदर पाकिस्तान में मुंतखब हो चुका हूँ और आपके वोटों से मुंतखब हुआ हूँ, और आप मुझे जो है वो 2 तिहाई लाकर भी सदर पाकिस्तान के ओहदे से फारिग नहीं करवा सकते, आप मेरा मुआवजा नहीं करवा सकते। तो ये एक बड़ी अहम तरीन प्लानिंग जो आसिफ अली जरदारी साहब ने की हैं। और फिर शेर अफजल मरवत साहब के बारे से आपको खबर देनी है कि आज उन्होंने जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की तौहीन की है, वो मुर्शद लुकमान साहब के साथ बैठे थे, उन्होंने उनको इंटरव्यू दिया, और आप सबको पता कि मुर्शद लुकमान किस तरह से इमरान खान के बॉक्स में पागल हैं, उनके खिलाफ गलीज़ किस्म की ज़ुबान ये शख्स इस्तेमाल करता है, हालांकि सहाफ़ी है। तो उनको शेर अफजल मरवत साहब ने एक इंटरव्यू दे दिया, जिसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर था उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब जो है उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अब शेर अफजल मरवत साहब चूंकि एक पार्टी के रहनुमा है, MNA हैं, तो उनके ऊपर जब तनकीद की जा रही है तो उनको उसका जवाब देना चाहिए, बजाय इसके कि वो आकर यहाँ पर बदमाशी करे। इसके बाप का मुल्क तो है नहीं। शेर अफजल मरवत के बारे में मैं पहले कह रहा था कि ये रॉन्ग नंबर है, ये पार्टी के अंदर इंतशार फैलाने आया है, और इसको लॉन्च किया गया कि ताकि पार्टी के अंदर जो है वो इंतशार फैला के पार्टी को तोड़ा जा सके, और फिर इसको KPK में लॉन्च करने का असल मकसद ये है कि मुराद सईद के मुकाबले में शेर अफजल मरवत की वहां पर इतनी पॉपुलैरिटी करवा दी जाए कि मुराद सईद का वहां पर नाम लेने वाला कोई ना हो। ये असल प्लानिंग है शेर अफजल मरवत साहब को वहां पर लॉन्च करने की। आज उन्होंने कहा कि वर्कर मेरे बाप नहीं है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की आप वोट लेकर MNA मुंतखब हुए, और ऊपर से आप आकर तजरील करते कि वर्कर मेरा बाप नहीं है और आपके बाप का मुल्क नहीं है, कि आप यहाँ पर जो है वो नौकरी करके आप यहाँ पर जो है वो जनाब इमरान खान के खिलाफ साजिश करके पार्टी के अंदर आए और फिर ये साबित करें कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे मकबूल तरीन रहनुमा है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अब आपको मैं जनाब यहाँ पर एक और बड़ी इनके हवाले से खबर देना चाहता हूँ कि किस तरह से ये शख्स इमरान खान की पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं, और आप मुझे यहाँ पर गालियाँ भी देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर ये बात करेगा कि शेर अफजल मरवत बड़ा दयानतदार है,
वो बड़ा बहादुर है, वो उसने ये कर दिया, वो बाहर आ जाता है, वो एहतजाज करता है। ये बिल्कुल एक ड्रामा रचाया जा रहा है शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से। मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं, और आप आने वाले वक्त के अंदर देखेंगे कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो उनका मकरू चेहरा ये कौम के सामने बेनकाब हो जाएगा। अब आपके सामने एक और खबर रखना चाहता हूं कि इमरान खान साहब जो है उनको जेल में मुलाकात करने की इजाजत नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब जो है वो एक पटिशन लेकर के अदालत ने जनाब उनको वहां पर मुलाकात करने की इजाजत दे दी। 6 वकला जो है उनका नाम दिया गया। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अब इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी के नताइज आना शुरू हो चुके हैं। कल की मुलाकात में 3 ऐसे नाम केपीके से सेनेट के लिए सामने आए हैं जो कि असल लिस्ट के अंदर मौजूद ही नहीं थे। इमरान खान साहब ने 3 नाम दिए, और वो नाम इमरान खान साहब ने कहा कि इनको सेनेट केपीके जो है वो सेनेटर मुंतखब करवाना है। उनका नाम नहीं दिया गया, और 3 नाम कहीं और से उठाए गए और उनको जो है वो सेनेटर के लिए वहां पर नामजद कर दिया गया है। तहरीके इंसाफ की जानिब से जो इमरान खान साहब को जो लिस्ट भेजी गई थी वो उसमें उन लोगों के नाम मौजूद नहीं थे। राय के मुताबिक फैजुर रहमान, वकास और कज़ई और खुरम निशान नामी इश्खास की सेनेट टिकट देने की मंजूरी इमरान खान साहब से ली गई थी, जबकि ये नाम किसी लिस्ट के अंदर न थे, और शेर अफजल मरवत साहब ने ये नाम इमरान खान को पेश किए। इसलिए शायद इमरान खान साहब से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई ताकि सेनेट में ऐसे नाम डाल दिए जाएं और जो इमरान खान साहब के करीबी भी ना हो और वो रॉन्ग नंबर हो और उनको वहां से कंट्रोल किया जा सके। खालिद मसूद का नाम उमैर न्याजी और हामिद खान की जानिब से दिया गया। शेर अफजल मरवत साहब इससे पहले भी इसी तरह के काम कर चुके हैं, और कल हाई कोर्ट में जेल में मुलाकात करने वालों के नाम भी अपनी मर्जी से डाल दिए, और असल अफराद का नाम उन्होंने जनाब लिस्ट से निकाल दिए ताकि जेल के अंदर इमरान खान को तनहा करके अपनी मर्जी के फैसले किए जा सकें। ये आपको मैं खबर दे रहा हूं कि पहले इसने सेनेटर्स के जो नाम आए हैं इमरान खान साहब ने इनकी मंजूरी दी, उनके नाम उन्होंने मिटवा दिए, और फिर दूसरा उन्होंने ऐसे वकला के नाम दिए कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर तनहा कर दे और हम पार्टी को हाईजैक कर दें। यहाँ से जनाब आपको देखना होगा कि शेर अफजल मरवत कैसे इमरान खान साहब की पीठ पर छुरा खोप रहा है, और ये एक रॉन्ग नंबर है और ये ब्लैकमेलर है, और इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके वोट हासिल कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गालियां भी देते हैं। मैं आपको जो है बड़ी आने वाले वक्तों के अंदर मैं इनके खिलाफ बहुत बड़े सबूत लेकर आऊंगा कि कैसे ये शख्स जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल करके इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके, पीटीआई का नाम इस्तेमाल करके जो है वो फंडिंग मांगा करता था शेर अफजल मरवत साहब कि हमें पैसे दे दें, और वो पैसे जो है वो अपने पेटों में ये शख्स जो है वो डालता था। तो ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। तो खैर आने वाले वक्त के अंदर मैं ये जरूर आपके सामने इंकशाफ सबूतों के साथ रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान और जनरल आसिम मनीर साहब जो हैं वो जनाब उनकी मुलाकात की खबर इस वक्त सामने आ रही है कि कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। ये मामला और माजरा क्या है, और ये खुफिया राब्तों की कोशिशें तो जो तेज़ी से जारी हैं कि डील हो जाए, इमरान खान साहब जो है वो सरेंडर कर लें, क्योंकि ये कंपनी ज़्यादा देर तक चलती हुई नज़र हमें नहीं आ रही। जो शहबाज शरीफ साहब की कंपनी है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। IMF का वफद पाकिस्तान के अंदर है, इमरान खान साहब के ऊपर वो मुलाकातों पर जो पाबंदी है उसकी मेन वजह यह भी हो सकती है कि IMF पाकिस्तान से चला जाए, पाकिस्तान और की डील हो जाए IMF के साथ, और फिर जाकर इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी हटा दी जाए। तो नजम सेठी साहब, आप सबको पता है कि ये कहाँ से बोलते हैं और किन के कासिद हैं। उन्होंने कहा कि 2 मंसूबे हो सकते हैं जो इमरान खान साहब पर पाबंदी लगाई गई है। एक तो ये कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने की इजाज़त ना दी जाए और उनको मच जेल या फिर भावलपुर की जेल के अंदर जो है वो भेज दिया जाए। ये खबर मैंने भी आपको पहले 2 दिन पहले दी थी कि इमरान खान साहब को मच जेल में भेजने का प्लान है कि खुफिया तौर पर इनको वहाँ पर रखा जाए और उनके हिसाब तोड़े जाएं और उनसे रब्ता कम करके इनको टाइट किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो टाइट नहीं होने वाले, और खान बहुत तगड़ा आदमी है, वो सर फिर है और वो इनके हिसाब पर तारी हो चुका है। वो इस निज़ाम के ऊपर जो है वो खौफ बनकर बैठा हुआ है, और ये इमरान खान साहब इनके लिए नाइटमेयर्स हैं। और फिर दूसरी जानिब दूसरा मनसूबा नजम सेठी साहब कहते हैं कि ताकतवर इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, मामलात को दुरुस्त करना चाहते हैं कि इस हुकूमत को चलने दिया जा सके, इमरान खान साहब एहतजाज ना करें, और जो ये मुलाकातें फिर जो है वो डयाला जेल के अंदर नहीं हो सकती। ज़ाहिर है वहाँ पर मीडिया भी मौजूद होता है, वहाँ पर कुछ आम शख्सियात भी होती हैं, खबर लीक आउट हो जाती है, तो अडयाला जेल में मुलाकातें नहीं हो सकती थी। तो ये मुलाकातों पर पाबंदी आयद करके कहीं और जाकर इमरान खान साहब से मुलाकातें करना चाहते हैं, और इसी वजह से बुशरा बीबी साहिबा को बनिंगाला शिफ्ट किया गया ताकि उनसे मुलाकातें बनिंगाला के अंदर की जाएं और वो ये पैगाम जो है वो खान साहब तक जो है पहुंचा सकें। तो ये नजम सेठी साहब जो है दावा कर रहे हैं। तो आने वाले वक्तों के अंदर कुछ बड़ी अहम मुलाकातें जो है मुतवक्के हैं, और फिर आपको खान साहब जो है जेल से बाहर आते हुए दिखाई देंगे। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, और इस में लाजमी खैर खाना के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।